بلیٹن کے آغاز میں سب سے اہم خبر، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ان کی پاکستان آمد کی تصدیق کر دی ہے۔ ہوائی اڈے پر عباس عراقچی کا استقبال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام بھی ایرانی وزیر خارجہ کے استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بعد میں سوشل میڈیا میں جاری بیان میں کہا کہ اپنے بھائی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ اسلام آباد میں استقبال کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بامعنی انگیجمنٹ کے منتظر ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ میں پبلک ڈپلومیسی سینٹر کے سربراہ اور ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، جس میں پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ تاہم اس دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ امریکہ کی مسلط کردہ جارحانہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ امریکی حکام ایران کے ساتھ مذاکرات میں ان افراد سے بات کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں ابھی اختیار ہے۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطیٰ میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر فورس کے طیارے بغیر کسی تعطل کے یہ عمل انجام دے رہے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں پہنچائے جانے والے یہ آلات کس نوعیت کے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور کن ممالک میں کتنے آلات پہنچائے گئے ہیں۔ جن ممالک کی فضائی حدود میں ان طیاروں کو آتا دیکھا گیا ہے، ان میں ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب ممالک شامل ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ خاموشی سے اسرائیل میں کئی ری فیولنگ طیارے بھی پہنچا رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگز کو نظر انداز کیا، اس لیے اس جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ قطر کے شاہی دیوان کے بیان کے مطابق قطر کے امیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان امریکہ اور ایران میں جنگ بندی مذاکرات پر گفتگو ہوئی۔ قطر پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کے لیے رابطہ کاری جاری رکھے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے چند ہفتوں میں قانون سازی کرے گا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سٹارمر کے اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کی مئی میں متوقع تقریر میں اس ضمن میں یہ بات شامل کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ میں صرف غیر ریاستی عناصر تنظیموں کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کی مسلح فوج کو برطانیہ دہشت گرد قرار دے گا۔ یورپی یونین فروری میں ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے۔ حکومت نے پیٹرول 26 روپے 77 پیسے اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ فی لیٹر ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے۔ مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔
वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा किया है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई है। लेवी बढ़ाने के बाद पेट्रोल पर लेवी 107 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई है। कराची के अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। शहरियों ने अपील की है कि हुकूमत फौरी कीमतों में कमी करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची दानियाल सैयद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी गुज़िश्ता रात जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 26 रुपये 77 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी फ़ी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत जो है वो 393.35 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की अगर बात की जाए तो उसकी नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है। कुछ शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल पंप पर आए थे, उनसे मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे 50-80 रुपये ज़्यादा कर दिए, फिर 10-15 रुपये कम कर दिए, तो इस तरह तो जो ना महंगाई इस तरह बढ़ती चली जा रही है कि जो ना सैलरी वही है और हमारे अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। और पेट्रोल का 250 का जो पेट्रोल रोज़ाना खर्च लगता था वो अब 500 का लग रहा है, तो परेशान है बहुत, और क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान को अप्रैल और मई में 3 LNG कार्गोज़ की स्पॉट ख़रीदारी के लिए आलमी सप्लायर्स की तरफ से $17.99 से $18.88 फ़ी MMBTU तक की बोलियां मौसूल हो गई हैं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने जांच पड़ताल के बाद कम से कम बोलियों की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी है। इन बोलियों की बुनियाद पर LNG ख़रीदारी का हतमी फ़ैसला PLL का बोर्ड करेगा। LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए 23 अप्रैल को टेंडर जारी किए गए थे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तवील मुद्दती मुआहदों के तहत कतर से LNG फराहमी मुअत्तल होने के बाद पावर सेक्टर के लिए हुकूमत ने LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए बिड्स तलब की थी। पेट्रोलियम डिवीज़न की कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड के टेंडर्स पर अप्रैल और मई के लिए 3 LNG कार्गोज़ की स्पॉट फराहमी के लिए फ्रांस, ओमान और स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों ने बिड्स जमा कराई हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देंगे नेपरा के हवाले से। नेपरा हुकाम का कहना है कि ऐसे सोलर सार्फिन जो नेशनल ग्रिड से मुंसलिक ही नहीं हैं, उनके लिए नेपरा से किसी लाइसेंस की कोई ज़रूरत है, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। नेपरा रेगुलेशंस में ऐसे ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन पर नेपरा रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो सकते। नेपरा रेगुलेशंस का इतलाक़ नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग के ज़ुमरे में आने वाले सार्फिन पर ही हो सकता है जो कि नेशनल ग्रिड से मुंसलिक होंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। ऑफ ग्रिड ऐसा सारिफ है जो नेशनल ग्रिड से मुंसलिक ही नहीं होता। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफिन के लिए पहले भी कोई लाइसेंस लागू नहीं था। हुकाम के मुताबिक नेपरा एक्ट के तहत रेगुलेशंस में भी ऑफ ग्रिड सारिफ के लिए किसी लाइसेंस का कोई जिक्र नहीं। मुल्तान से आपको खबर देंगे, जहां हुकूमत की जानिब से गंदम की फरोख्त के लिए 5 सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ किसानों ने शहर में सड़क किनारे गंदम फरोख्त स्टॉल्स भी लगा लिए हैं। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से जौदत नदीम। जी, मुल्तान में भी गंदम की कटाई के बाद गंदम को फ़रोग़ करने का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के कासिमपुर कॉलोनी में, जहाँ पे किसानों की जानिब से सड़क के किनारे जो है वो स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पे गंदम जो है वो फ़रोग़ की जा रही है। क्वालिटी के मुनासबत से 3000 रुपये मन से लेके 3600 रुपये तक की जो गंदम है मन की, वो यहाँ पर फ़रोग़ की जा रही है। किसानों का यही कहना है कि जिनके जो शहर में जो यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से, तकरीबन 5 सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे गंदम जो है हुकूमत के ज़रिए थर्ड पार्टी को फ़रोग़ की जा रही है। लेकिन जो किसान रह गए थे वहाँ पे फ़रोग़ करने से वो यहाँ पे आके अपनी गंदम फ़रोग़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि पिछले 2 साल की बनिस्बत जो है वो इस दफ़ा रेट बढ़ा हुआ है और उससे उनका बजट कुछ हद तक मुतासर ज़रूर हो रहा है। उनका कहना है कि लेकिन अच्छी गंदम यहाँ पर मिल रही है तो वो यहाँ पर आके ख़रीदो फ़रोग़ कर रहे हैं। जी, स्वात की हसीन वादियों में जहां कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं, वहीं महंगाई और बेरोज़गारी ने मेहनत कशों की ज़िंदगियों के रंग भी फीके कर दिए हैं। दिहाड़ीदार मजदूर जो कभी उम्मीद के सहारे जीते थे, आज मायूसी के साए में सांस ले रहे हैं। स्वात से डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। ये स्वात है, खूबसूरती की सरजमीन, मगर यहाँ की चेहरों पर फैली तकन किसी और कहानी का पता देती है। फजर की पहली किरण के साथ ही मजदूर अपने ख्वाबों को कंधों पर उठाए घरों से निकलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज शायद कोई काम काज मिले।
मगर दिन ढलता है और उम्मीद भी कहीं अंधेरों में खो जाती है। सुबह सवेरे फजर पढ़ के या न पढ़ के वो बस निकलते हैं। यहाँ पे बेरोजगार है, हम सब लोगों का, हम सब गरीबों का जो है ना कमर तोड़ दिया है। बच्चे कराइए घर का और खर्चा भी है, तो हम वापस जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलते। इन आंखों की नमी है जो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने की ख्वाहिश में भीग जाती है। तामीराती सरगर्मियों की खामोशी ने हथौड़ों की आवाज़ छीन ली है और महंगाई के तूफान ने चूल्हों की आंच मदम कर दी है। काम के लिए आता है लेकिन काम नहीं है। महंगाई के दौर में हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल और बहुत कठिन गुजर रही है। सवाल ये है कि क्या इन मेहनत कशों के ख्वाब भी इसी तरह खामोश रहेंगे या कोई सुबह ऐसी भी आएगी जब इनके हाथ खाली नहीं उम्मीदों से भरे होंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। सुथरा प्रोग्राम शहरों को साफ करने की कोशिश में है। वहीं इस प्रोग्राम के लिए काम करने वाले वर्कर्स बर वक्त वाजिबात ना मिलने की शिकायत के साथ एहतजाज करने पर भी मजबूर हैं। वर्कर्स के एहतजाज के बायस फैसलाबाद में कूड़ा उठाने की जिम्मेदार निजी कंपनी को इजहार वजह का नोटिस दिया गया है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले ये वर्कर्स सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत घर घर से कूड़ा उठाने और मुंतकिल करने पर मामूर हैं, जिन्होंने बरवक्त वाजिबात ना मिलने पर डीसी दफ्तर के बाहर कूड़े के ढेर लगाकर नारेबाजी की। हमने इसलिए रोड ब्लॉक किया, हमें 2 मंथ की सैलरी नहीं मिली, ना वर्करों को और ना ड्राइवरों को। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल से निकाल दिए गए, हम किसको जाके कहेंगे हमें पैसे दें। सरापा एहतजाज है सेंट्री वर्कर और रिक्शा ड्राइवर, इनके बहुत से मुतालबात हैं। सबसे मेन है जो रिक्शा ड्राइवर है, उनकी 2 मंथ की सैलरी है और ना उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिला और ना राशन कार्ड मिला है और ना IOB कार्ड मिला है। अमला सफाई के एहतजाज के नतीजे में जिली इंतजामिया ने वर्कर्स से फौरी मुज़ाकरात करते हुए इन्हें आइंदा 24 घंटों में अदायगियों की यकीन दहानी करवाई। कॉन्ट्रैक्ट है जिनके पास FWMC का केयर सर्विसेज कंसोर्शियम, उन्होंने प्राइवेटली हायर किए हुए थे और उनके मुताबिक जब हम मौके पर पहुंचे तो उनके मुताबिक हमारी इन्होंने 1 महीने से ऊपर की पेमेंट नहीं की थी। हमने पहले तो उनकी पेमेंट इंश्योर कराई, कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि इनकी पेमेंट दे। एहतजाज के बाद सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मॉनिटरिंग एजेंसी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा उठाने का इंतजाम चलाने वाली निजी कंपनी से मुलाजमीन को बर वक्त अदायगियां ना करने पर इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए 3 रोज में तहरीरी जवाब तलबी की गई है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर सिंध की जामियात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तालीमी मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि जाली डिग्रियों के खात्मे के लिए HEC के साथ डाटा शेयरिंग को ज़रूरी करार दिया है। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर का जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि सिंध की जामियात किसी भी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक से कम नहीं हैं। न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्की जामियात के पास पाकिस्तान को दरपेश टेक्नोलॉजी, समाजी व माशी मसाइल हल करने की सलाहियत मौजूद है। The way my institutions are performing, ये किसी भी लिहाज से डेवलप्ड वर्ल्ड से कम नहीं है। ये IBA सक्खर जो है ना, ये IBA कराची से भी किसी लिहाज से कम नहीं है। चेयरमैन HEC का कहना था कि जाली डिग्री केसेस वाइस चांसलर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी का टास्क है, ताहम तमाम जामियात को हिदायत दी गई है कि इम्तहानात का मुकम्मल डेटा हमारे साथ शेयर किया जाए ताकि बाद में किसी भी किस्म की रद्दोबदल को रोका जा सके। यकीनी तौर पर क्योंकि ये वाइस चांसलर का टास्क है, वो इन चीज़ों को ज़रूर कैटर करेंगे। खत लिखा है सारे इंस्टीट्यूशंस को कि आपके पास जो इस वक्त डाटा अवेलेबल है एग्जामिनेशन सिस्टम का, वो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ शेयर कर लें। हमारे पास इमीडिएटली शेयर हो जाएगा तो कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता। चेयरमैन HEC के मुताबिक फाइन आर्ट्स के शोबे में अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर अच्छा इदारा है जिसका दीगर मुल्की जामियात के साथ इश्तराक चाहते हैं, जिससे इसका तालीमी मेयार बेहतर होने के साथ खित्ते की तरक्की भी मुमकिन होगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। और अभी खबर है कराची से, जहां गाजीगोट स्कीम 33 के करीब 12 साल का लड़का पानी की लाइन में डूब गया।
तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। 12 साला लड़का गुज़श्ता रोज़ इलाके के बच्चों के साथ नहाने पहुंचा था और इस दौरान वो पानी की लाइन में डूब गया। कराची में गाजी गोट स्कीम 33 के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 12 साल का लड़का पानी की लाइन में डूब गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। मज़ीद जानेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा क्या इतलात हैं? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू और जो रेस्क्यू 1112 मरीजी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज स्कीम 33 गाजी गोट में नहर में डूब के 12 साल बच्चा जो है वो लापता हो गया था, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज भी ऑपरेशन किया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में ऑपरेशन रोक दिया गया था। तो रेस्क्यू 1112 मरीजी के मुतफरों ने नहर में डूबने वाले बच्चे की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। नहाने के दौरान बच्चा जो है वो डूब गया था। अहले खाना का बताना है कि दोस्तों के साथ गुज़िश्ता रोज नहाने गया था, शाम उसके बाद वापस नहीं आया। रेस्क्यू काम का कहना है कि कोशिश जारी है ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे को इस नहर से निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानियाल। आगे बढ़ते हैं। ईरान में अवाम की जानिब से हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक़ में मुजाहरे जारी हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के मरकज़ में वाक़े इनकलाब स्क्वायर पर हज़ारों ख़वातीन और मर्दों ने सुप्रीम लीडर हुकूमत और फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। ये मुजाहरे ऐसे वक्त में जारी हैं जब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्लाफात हैं। ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको पता ही नहीं है कि उसका रहनुमा कौन है। अमरीका और इसराइल ये भी दावा कर चुके हैं कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से नाला हैं और वो रजीम चेंज चाहते हैं। पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर हैं। मलेरिया के फैलाव की वजूहात क्या हैं? दुआ मिर्जा की रिपोर्ट में जानिए। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि ये याद रहे कि मलेरिया पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा मसला है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में मलेरिया से 24 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि 6,10,000 लोग जान से गए। खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 7 करोड़ 30 लाख अफराद मलेरिया के हाई रिस्क पर है। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान में मलेरिया ज्यादा फैला, जब 22,50,000 अफराद इसका शिकार हुए। बड़ी वजूहात थी मौसमियाती तब्दीली, आबादी की नक्लो हरकत और मॉनिटरिंग सिस्टम में अदम तवज्जुही। मलेरिया को हम पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंस शायद इसलिए नहीं दे रहे होते कि हमें लगता है कि मलेरिया एक डेडली डिजीज़ नहीं है, लेकिन मलेरिया से आपकी इकोनॉमिक्स भी बहुत, इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी बहुत अफेक्ट होती हैं, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन में जितने लोग अफेक्ट होते हैं और फिर वो या कॉम्प्लिकेट होकर फैसिलिटी तक पहुँचते हैं तो उसकी मजदूरी जाती है, उसका काम जाता है, माँ का, बच्चों का। सो उस हिसाब से इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि 5 साल से कम उम्र के 90% बच्चे मलेरिया के पेचीदा मर्ज से नहीं लड़ पाते और जान की बाजी हार जाते हैं। मलेरिया के केसेस इससे कहीं ज्यादा हैं जितने रिपोर्ट किए जाते हैं। वो बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको सेरेब्रल मलेरिया का नाम है, जो दिमाग में मलेरिया चला जाता है, उन्हें झटके पड़ते हैं। औरतें और स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें। क्यों प्रेग्नेंट औरतें? इसलिए कि उनको हो जाता है अनीमिया। अनीमिया होने के बाद क्या होता है कि उनका बच्चा जो पैदा होता है वो भी लो बर्थ वेट बेबी होता है, यानी कि उस बच्चे के अंदर जो है उसका वज़न कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जबकि वो हामला माँ होती है। बारिश या सैलाब के बाद खड़ा पानी, खुले पानी के टैंक, गड्ढे और तामीराती मकामात, नाक़िस सफाई और कचरे का जमा होना मलेरिया की सूरत हाल को मजीद संगीन बनाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में करीबन हर साल 20 लाख मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं, ताहम इनमें से निस्फ से भी कम की बाकायदा तस्दीक हो पाती है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इस बीमारी का बोझ ज्यादा है, जिसके बाइस आगाही मुहिम नागुज़ीर है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध का 5000 साल कदीम तरीन साज बुड़िंदो, जिसको बनाने और बजाने वाले चंद फनकार ही बाकी हैं। महकमा सकाफत ने इस साज को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठा रखा है। देखते हैं अली नईम की रिपोर्ट। बोड़िंदो साज की तारीख मोहिंजोदाड़ो से मिलती है। ये साज मिट्टी से बनाया जाता है जो वक्त के साथ साथ मादूम होता जा रहा है। यही वजह है कि दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इस कदीम साज को फौरी तहफ़्फ़ुज़ के मतकाज़ी विरसे की फहरिस्त में शामिल करके आलमी शिनाख्त दी।
दूसरी जानिब महकमा सकाफत सिंध ने इस साज को नौजवानों तक मुतारिफ करने का आगाज कर दिया है, जिसके लिए हैदराबाद में 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें साज बनाने वाले जुल्फिकार अली बोड़िंदो तैयार कर रहे थे तो फकीर मोहम्मद ने साज बजाकर अपने फन का मुजाहिरा किया। 3 रोजा जो वर्कशॉप हुई थी बोरिंदो मेकिंग कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसी में मैंने ये 3 दिन में ये बोरिंदो मैंने खुद बनाया हाथ से। अब जो इसका कल्चर खत्म होने लगा था, दैट इज वाई ये वर्कशॉप हुआ है और हमने अटेंड किया है वर्कशॉप, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हमने ये बोरिंदो खुद बनाया है और अब हम इसको सीखेंगे। वर्कशॉप का इफ्तिताह सूबाई वजीर सयाहत और सकाफत सैयद जुल्फिकार अली शाह ने किया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो ये हमने वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज जो डिक्लेयर हुआ है बोरिंडो, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वो भी पूरी दुनिया में जाता है। वर्कशॉप में शरीक आर्ट्स के तलबा ने बोरिंदो साज को बनाने और बजाने के लिए सीखने में दिलचस्पी ली। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।